کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہیں، امید ہے حالات بدلیں گے اور مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت سے کام لینے چاہیے اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں تو انشاءاللہ امید ہے حالات بدلیں گے، ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہیں۔ بہت سننے کو مل رہی ہیں، ہم مسلمانوں نے ہی بہت ساری چیزوں پر ناجائز قبضے بھی کر رکھے ہیں، کرایہ سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ ہم بھی اپنے وقت بورڈ کا صحیح استعمال کرتے تو آج حکومت کو یہ قدم اٹھانے کی شاید ضرورت کہ مدرسوں میں پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کس طرح مسلمان مزدوری کر کر اپنے بچوں کا پیسہ نکال کر کے جو 2 وقت کھانا چاہتے تھے اس میں 1 وقت نکال کر۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلمان 2.5% ہر سال نکالتا ہے، وہ ہمیں غریبوں کو دینا ہی دینا ہے۔ تو ہمارے مسلم پوری اس میں کمپنی میں 2.5% جو سالانہ نکالا جاتا ہے، جس کو ہمارے زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ ہمارے غریبوں پر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے مدرسوں میں اور جتنے ہماری سنستھائیں چل رہی ہیں سب ہمارے اس پر ہی چل رہی ہیں کہ لوگ 2.5% بھی نکالتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات بھی نکالتے لوگ ہیں۔ بہت کم تعداد میں ہیں، 10% لوگ ہیں اس طرح کے جو نہ کہیں کاروبار میں ہیں نہ تعلیم میں ہے، اور بلکہ 2% لوگ ہیں جو ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ آپ ہمارے ملک کی جو گنگا جمنا تہذیب ہے اور ہمارا جو بھائی چارہ ہندو مسلم کا یہاں ہے، آپ اسے خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم دوستوں، میں سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نمسکار بھارت۔ آج ہم پانی پت کے عیدگاہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہے وہاں پر موجود ہیں اور آج یہاں پر 5 بچوں نے قرآن حافظ جو ہے وہ پورا مکمل کیا ہے۔ ان کے مکمل قرآن ہونے پر یہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا، چیف گیسٹ کے روپ میں یہاں پر گڑھی دولت سے جو مولانا عاقل صاحب ہیں وہ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ تمام جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہاں شرکت کر کے جو آنے والی پیڑھی ہے، جو آنے والے بچے ہیں، ان کو ایک میسیج دیا ہے کہ آپ دینی شکشا کو ضرور جو ہے اپنے جیون میں اتاریں اور دینی شکشا کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کی شکشا، آدھنک شکشا جس کو بولتے ہیں، کمپیوٹر کی شکشا جس کو بولتے ہیں، اس کو بھی آپ دھارن کریں۔ تو سیدھے مولانا عاقل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آج یہاں قرآن حافظ جن بچوں نے پورا کیا ہے ان کو بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں ان بچوں کو بھی مبارکباد دوں گا، ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ کو، اس مدرسے کے ذمہ داروں کو جو اس کو چلا رہے ہیں، جو ذریعہ بنے ہیں اس بات کا کہ بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ ان بچوں کو کامل حفظ کرا دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں بھی تکمیل کرنا، پورا کرنا آسان فرما دے اور بچوں کو اللہ پڑھنے کا شوق عطا فرما دے۔ آج کی جو پیڑھی ہے مولانا صاحب وہ موبائل میں گھستی چلی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو جو ہے اپنا کافی سمے جو ہے اس پہ برباد کرتی ہے، کیا سندیش دینا چاہیے؟ سندیش تو یہی ہے کہ نہ اپنا وقت نہ اپنا پیسہ فضول ضائع کریں۔ وقت بھی بہت قیمتی ہے، پیسہ بھی بہت قیمتی ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، ٹیکنیکل تعلیم دلائیں، بچوں کو جو مقابلہ جاتی امتحان ہوتے ہیں ان میں بچوں کو شامل کرائیں، اور اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے آج بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سرکاروں کی بات کریں تو تمام وقف بورڈ پہ بھی انہوں نے جو ہے اور تمام طرح کی جو تکلیفیں اور تمام طرح کے حالات جو چل رہے ہیں ان پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس سے اس میں ہمارا بھی اپنا بڑا دخل ہے۔ وقف بورڈ میں پہلے ہماری طرف سے کمیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد سرکار متوجہ ہوئی ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان بھی اپنے وقف بورڈ کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اتنا پیسہ وقف بورڈ میں ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو ہمارے بچوں کے لیے اچھے کالج، اچھی یونیورسٹیاں قائم کی جا سکتی ہیں۔ صحیح استعمال ضروری ہے۔ جو ذمہ دار ہیں ان کو ایمانداری کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ سرکار بھی تعاون کرے گی۔ وقف بورڈ آپ کی نظر سے ٹھیک کام کر رہا ہے فی الحال؟ شکایتیں بہت سننے کو مل رہی ہیں، ہم مسلمانوں نے ہی بہت ساری چیزوں پر ناجائز قبضے بھی کر رکھے ہیں، کرایہ سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ ہم بھی اپنے وقف بورڈ کا صحیح استعمال کرتے تو آج حکومت کو یہ قدم اٹھانے کی شاید ضرورت نہ پڑتی۔ سنبل کی گھٹنا آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب تمام طرح کی چیزیں وہاں مل رہی ہیں، کچھ ہے اس پہ کچھ کہنے کا؟ اصل میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں حالات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہیں، امید ہے حالات بدلیں گے اور مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت سے کام لینے چاہیے اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں تو انشاءاللہ امید ہے حالات بدلیں گے، ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے ہیں۔
तो हालात जो हैं जो अपने दीन पे कायम रहे उससे बदलेंगे। और हमारे साथ मौलाना हैं, बात करते हैं। सर, आज का जो युवा है वो अपने आप को सोशल मीडिया पे भी और दीन से थोड़ा सा जो है, क्योंकि जो बुज़ुर्गों की मेहनत है उस पर कहीं ना कहीं भटकता नज़र आ रहा है, क्या कहें? माशाल्लाह आपके इस चैनल के माध्यम से जो आवाज़ पहुंच रही है युवाओं तक जो यहाँ हाजिर नहीं हो सके हैं उन तक भी आप ये मैसेज देना चाहते हैं। युवाओं को लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त में कि सोशल मीडिया में जो लगे हैं उसका सही इस्तेमाल करें। असल में इस्तेमाल से गड़बड़ हो रही है। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल सही कर दें तो हमारे जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके बाप बाप परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं, महल्ले वाले पड़ोस वाले परेशान हैं, अगर वो इसको सही इस्तेमाल में लेकर आ जाए तो इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है और इससे बड़े फ़ायदे की उम्मीदें भी हैं। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि अपने वक्त का भी और सोशल मीडिया पर जो लोग हमारे बच्चे रहते हैं उसका इस्तेमाल सही करें, गलत इस्तेमाल में, गलत यूज़ में उसको न लाएं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एक सवाल आपसे ये है कि तकरीबन जो दूसरे लोग हैं वो हमेशा मदरसों को दूसरी निगाह से देखते हैं, कहाँ से इनका संचालन होता है, कहाँ से ये चलते हैं, कहाँ से चंदा आता है। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि चंदा जो आता है मदरसे जो किस पोजीशन पे है देश में, उसके बारे में थोड़ा सा हालात। असल में एतराज़ उस वक्त होता है जब आदमी किसी हकीकत से वाकिफ़ नहीं होता और उनके बुनियादी उसूलों को जानता नहीं है। अगर वो इस हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं कि मदरसों में पैसा कहाँ से आता है और किस तरह मुसलमान मज़दूरी कर कर अपने बच्चों का पैसा निकाल करके जो 2 वक्त खाना चाहते थे उसमें 1 वक्त निकाल कर। दूसरी बात ये भी है कि मुसलमान 2.5% हर साल निकालता है, वो हमें गरीबों को देना ही देना है। तो हमारे मुस्लिम पूरी उसमें कंट्री में 2.5% जो सालाना निकाला जाता है, जिसको हमारे ज़कात कहते हैं, वो हमारे गरीबों पर ही इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारे मदरसों में और जितने हमारी संस्थाएं चल रही हैं सब हमारे उस पर ही चल रही हैं कि लोग 2.5% भी निकालते हैं, उसके अलावा सदका और खैरात भी निकालते हैं। और हमारे ये तालीम दी जाती है कि रोज़ाना जो कमाया जाए उसमें से पैसा निकाला जाए। आज आपने देखा माशाअल्लाह कि यहाँ कितने हज़ारों लोग मौजूद थे, लेकिन एक आवाज़ लगाई गई और लोगों ने अपनी जेबों में से, गरीबों ने अपना पैसा निकाल करके दिया है कि जो बच्चे यतीम हो चुके हैं, जो झोपड़ पट्टी में रह रहे हैं, उनका कौन पुरसान हाल होगा। अगर मालदार अपनी तिजोरी के में पैसे रख कर के माल इसी तरह अपनी कोठी में मस्त रहेगा तो इन गरीबों का जो रोडों पर नंगे रात में सर्दी में लेटे हुए हैं या उनकी शिक्षा का तालीम का इंतज़ाम नहीं है। मालदार लोगों ने बच्चों की 2.5 लाख रुपए फ़ीस कर करके अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल मजबूरी है कि गरीबी हटाओ। हमारे यहाँ जो रोडों पर पन्नी वगैरह चुगने वाले भाई, किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है भलाई का काम करना, दूसरों तक नफ़ा पहुँचाना है। हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे ऐसे खुले हैं, वो किसी को ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुस्लिम है, हमारा काम फ़ायदा पहुँचाना है। अगर हम लोग इसमें लग जाएंगे तो फिर ये सवाल जो आपने किया है कि मदरसों में पैसा कहाँ से आता है, तो इसका बुनियादी हक़ ये है कि वो ये देखें आकर के आता कहाँ से है। हमारे पास कहीं से कोई फ़ंड नहीं आता, बल्कि गरीब मज़दूर बच्चे हमारी मज़दूरी कर कर रोज़ाना वही पैसा हमारे पास इस्तेमाल होता है, वही मदरसों में खर्च। मदरसों के जो बच्चे हैं उनमें दीनी शिक्षा के साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है जिससे वो रोज़गार मिले उनको, जाकर वो साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे सर? असल में मदरसों में तो ये जो लोग आजकल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा है, या तो कोई यह सोची साजिश का नतीजा है, वरना तो जो मदरसे हमारे यहाँ माशाल्लाह 10 क्लास तक और 12 तक का बेहतरीन स्कूलों में मदरसों में निज़ाम बनाया गया है। अच्छे हमारे यहाँ पिछले साल की रिपोर्ट आई है, आपने देखा भी होगा कि बच्चों ने हमारे बोर्ड के वो दिए हैं इम्तिहानात, और बोर्ड के इम्तिहानात में मेरे हिसाब से मदरसे के बच्चों ने ही पोजीशन हासिल की है। कुछ बच्चे हमारे IAS ऑफिसर भी बने, एक मौज़िन साहब का बेटा भी हमारा, एक बेटी जज बन गई है मौज़िन साहब की, जो मस्जिद में अजान देता है। तो ऐसा नहीं है कि मदरसों में ये जो स्कूलों की तालीम है ये कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मदरसों में किया जा रहा है, लेकिन शायद मीडिया वाले लोग जानबूझकर ऐसे ही मदरसों में जाते हैं कि जहाँ से देखने में उनको अपना कुछ मवाद मिल जाए और कुछ अपने स्क्राइब करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाए। तो नहीं, मदरसों में इस तालीम का नज़म है, बाकायदा टीचर्स रखे गए हैं माशाल्लाह, और उसमें भी यही कोशिश की गई है कि दीनी तालीम के साथ साथ हमारे बच्चे दूसरी दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हों, और ये जो कलंक लगाया जा रहा है इसको दूर करने की कोशिश की जाए। क्या नाम है अपना सर? मैं मौलाना महफूजुर रहमान, मैं मरकज़ तामीर मिल्लत कैरान से जो हूँ। प्रोग्राम रहा है 5 बच्चों ने कुरान हाफिज पूरा किया है, क्या जी। कुछ कहना चाहिए?
ये मदरसा तजवीदुल कुरान जो यहाँ ईदगाह में पानीपत में चल रहा है, माशाल्लाह 4 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है और आज उसी के ताल्लुक़ से यहाँ प्रोग्राम था। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। आज के इस प्रोग्राम का जो मैसेज है, आपके जो चैनल है नमस्कार भारत, इसके ज़रिए से हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि माशाल्लाह अमन और शांति के लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चों की हौसला अफजाई की गई है और बच्चों में हौसला बढ़ता है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। देश में अमन व कायम जो है कहीं ना कहीं बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। जी जी। अक्सर ये घटनाएं देखने को मिल रही है, अखबारों की सुर्खियों में रहता है। तो आपकी नज़र से जो लोग इस तरह के शरारती हैं, चाहे वो किसी भी तरफ के हों, क्या कहना चाहेंगे आपके पास? इस तरह के लोग बहुत कम तादाद में हैं। 10% लोग हैं इस तरह के, जो न कहीं कारोबार में हैं, न तालीम में है, और 2% लोग हैं जो मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को कि आप हमारे मुल्क की जो गंगा जमुना तहज़ीब है और हमारा जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम का यहाँ है, आप उसे ख़राब करने की कोशिश ना करें। और जो हमारे संजीदा जहन के लोग हैं, सेकुलर जहन के लोग हैं, वो हज़रात भी जो है इसको संजीदगी से लें और उनके बहकावे में ना आए। अपने जो मुल्क की सलामती है, भाईचारा है, उसको कायम रखने की कोशिश करें। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वासिल अल हुसैनी, कन्वीनर जमीयत यूथ क्लब ज़िला शामली। तो आज यहाँ मॉडल टाउन ईदगाह में जो है 5 बच्चों को कुरान हाफिज़ से पूरा होने पर तमाम मेहमान जो हैं यहाँ पहुँचे थे और उन मेहमानों को यहाँ पर आपने क्या कुछ उन्होंने इस देश के मुल्क के बारे में, भाईचारे के बारे में, आपसी जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहा, आपने पूरा सुना। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद। अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, गलतियों को माफ़ फरमा दे। गुनहगार हैं, खतावार हैं, तेरे दरबार में हाजिर हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। अपना फजल फरमा दे, करम फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे।